So welcome you all to the training session on ISO 9001-2015 Quality Management System Internal Auditor. Today is the 7th session, and in today's session we will continue the clause number 8, that is operation. Till Friday we have completed till 8.3, that is design and development of products and services. So now we will continue with clause number 8.4, that is control of externally provided processes, products and services. So this clause is basically corely related to the purchasing activities. So what kind of controls needs to be there put on by the organization on the external providers is explained in this clause, and then we will start clause number 8.5, that is production and service provision. So basically this clause is basically focused on the production activity in your organization. As well as in this clause there will be a preservation activity that is related to the store. So it is preservation of the incoming product also, and preservation of basically the products that you manufacture. So it will be applicable to the warehouse section as well. So clause of confidentiality, as we are telling you at the start of every session, the training content is of proprietary nature. Do not share it on any of the platform like screenshots or recordings without any prior consent from us. Share the knowledge, do not share the contents directly. So clause number 8, operation, and in that we have completed up to 8.3, and today we will start with 8.4 and then continue with 8.5. So this is the clause structure that we have seen. And 8.4, control of externally provided processes, products and services. So in that there is a 8.4.1, clause number 8.4.1, it is general requirement described. Then 8.4.2, type and extent of control, है ना, the extent of control, किस टाइप का कंट्रोल आप लगाओगे एंड कहां तक लगाओगे. Okay, it is called type and extent of control. And then comes 8.4.3, information for external provider. So what kind of information should be given to the external provider so that you get a proper material, service or processed product. Now vocabulary related to this section, what is provider? We have seen this earlier also, but we are recapping it again. What is provider, or you can say supplier? The organization that provides products or services, है ना. जो भी organization products और services provide करते हैं उनको बोलते हैं provider. Now it can be a producer, distributor, retailer, vendor, जो भी है of a product or services. Sometimes manufacturer is different and supplier is different. People might be taking the material from the manufacturer and then they are supplying it to you. So in that case, what are the controls needs to be put? A provider can be internal or external to the organization. That provider can be internal also, not necessarily outside of the organization. Internal provider doesn't mean जो आपकी इंटरमिटेंट प्रोसेस रहती है, नॉट लाइक दैट. ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस आपके क्यूएमएस के प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं है, योर ऑर्गेनाइजेशन क्यूएमएस में वो इंक्लूडेड नहीं है. इन दैट केस दैट प्रोसेस इज बेसिकली मे बी विद इन योर प्रीमाइसेस, आपकी प्रीमाइसेस में भी हो सकती है, या आपके ही ऑर्गेनाइजेशन की कोई सिस्टम कंसर्न हो सकती है. सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड अ इंटरनल प्रोवाइडर. और एक्सटर्नल तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है उनका, कमर्शियली आपके अंडर नहीं है, आपके प्रीमाइसेस में है. सो दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन. देन एक्सटर्नल प्रोवाइडर लाइक एक्सटर्नल सप्लायर. एक्सटर्नल प्रोवाइडर मीन्स एक्सटर्नल सप्लायर, प्रोवाइडर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल प्रोवाइडर किसको बोलेंगे? हु इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. और प्रोवाइडर कौन रहेगा? इट कैन बी इंटरनल ऑल्सो, एक्सटर्नल ऑल्सो, है ना. नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अ एक्सटर्नल प्रोवाइडर और एक्सटर्नल सप्लायर, है ना. जो हमको रॉ मटेरियल देते हैं, जो हमको पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं,
जो हमको प्रोसेस में लगने वाले केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए कोई अगर हमको या पैकिंग के लिए कुछ लगता है तो जो चीजें प्रोवाइड करते हैं, दे आर बेसिकली प्रोवाइडर। लाइक एग्जांपल्स जो है हमारे रॉ मटेरियल है, पेरोल की सर्विस आउटसोर्स की जाती है, फैब्रिकेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्टर कैंटीन के लिए आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। So these are all basically providers, and many cases it is a external provider. ठीक है। So like in case of a restaurant business, है ना, you know that there are certain things you buy from the market, है ना। So जो vegetables है या फिर जो भी आपको उसके अंदर ingredients लगते हैं, these are basically products, externally provided products है वो। Then it can be a external provided service also. लाइक अगर आपने क्लीनिंग सर्विस को आउटसोर्स किया है ना, सो दैट सर्विस इज बेसिकली आउटसोर्स, सो इट इज कॉल्ड आउटसोर्स सर्विसेज। एंड देन अगेन वन मोर थिंग विल कम, वी विल सी लेटर ऑन, अगर आपने इसमें से कोई प्रोसेस जो है आउटसोर्स की है, सम प्रोसेस यू कैन आउटसोर्स, देन दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नली provided services, processes. In 8.4.1 general, it talks about the organization shall ensure now our controls on the external प्रोवाइडर क्या क्या तरह के होना चाहिए, किस तरह से हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को कंट्रोल करेंगे ताकि हमको जो प्रोडक्ट्स मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है, वो प्रॉपर रहे, है ना, एज पर स्पेसिफिकेशंस है, एज पर हमारे रिक्वायरमेंट है, नॉन कंफर्मिंग ना मिले। उसके लिए क्या करना है, organization shall ensure that externally provided processes, products and services conforms to the requirement. तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कंफर्म करनी चाहिए उसने, है ना, इट शुड कंफर्म टू योर, इट शुड बी इन कंफॉर्मेंस टू योर रिक्वायरमेंट। आपने जो भी मटेरियल अगर मांगा है, यू हैव गिवन अ स्पेसिफिकेशन, सो दैट मटेरियल शैल बी within your specification only, it should meet your requirements, it should conform to your requirements, that is the requirement given in the standard. Secondly, the organization shall determine the controls, organization को determine करना है कि किस तरह के कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर लगाए जाएंगे। कब, when products and services from external providers are intended for incorporation into organization's own products and services, है ना। नाउ आपके जो प्रोवाइडर्स होते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रोसेस रहे, प्रोडक्ट्स रहे, सर्विस रहे, कोई भी रहे, है ना, कोई भी रहे, वेदर इट इज से क्रिटिकल टू योर प्रोडक्ट, वेदर इज नॉन क्रिटिकल टू योर प्रोडक्ट, वो जो है आपकी रिक्वायरमेंट को कंफर्म करनी चाहिए। इवन आपके प्लांट में अगर छोटा सा नट बोल्ट भी अगर आता है, तो वो जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आना चाहिए, है ना। आपने M16 का नट बोल्ट मंगाया है और उसके अंदर आपने लेंथ लिखा है, इट शुड बी 100 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल, सो इट शुड कंफर्म टू योर रिक्वायरमेंट। आपने अगर कोई बेरिंग मंगाया हुआ, रिक्वायरमेंट है आपकी बेरिंग की, इट शुड कंफर्म टू योर रिक्वायरमेंट, किस टाइप का मटेरियल है, सील टाइप का है, नॉन सील टाइप का है ना, रोलर बेरिंग है या फिर बॉल बेरिंग टाइप है, नीडल बेरिंग टाइप है, व्हाट इट में भी, उससे कंफर्म होना चाहिए। सेम रॉ मटेरियल में आपने जो केमिकल मंगाया है, उसकी जो नॉर्मेलिटी, मोलरिटी या फिर जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप मंगाते हो, पीएच लेवल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स है, उसको कंफर्म करना चाहिए। नाउ वो मटेरियल आपके प्रोडक्ट में जा रहा हो या नहीं जा रहा हो, है ना, तो भी वो कंफर्म होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, तो होना ही चाहिए। कोई भी हम स्पेसिफिकेशन देंगे तो उसके हिसाब से आना चाहिए। द सेकंड वन, दिस वन इज बेसिकली, ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या कंट्रोल लगाने हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर। अब वो कौन से प्रोडक्ट के लिए है, जब वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है, जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर आपको दे रहा है, वो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर आने वाले हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर यूटिलाइज होने वाली है।
जैसे नट बोल्ट है, वो आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं लग रही होंगी. फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ केमिकल, नट बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिकली योर मशीनरीज, है ना. तो अब ये जो नट बोल्ट हमने खरीदा, इट इज नॉट गोइंग इनटू योर प्रोडक्ट, बट आपके यहाँ पे जो एपीआई आता है या फिर आपके पास जो केमिकल्स आते होंगे, कुछ पाउडर्स आते होंगे, ये आपके प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूटिलाइज होते हैं. ओके, सो ये प्रोडक्ट जिससे आप प्रोडक्ट बनाते हो या जिसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, वो प्रोवाइडर्स जो रहेंगे हमारे, उनके ऊपर आपको कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, है ना. सो द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर incorporated into your organization's own products and services that are provided directly to the customer by external provider on behalf of the organization. अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है जो आपका जो सप्लायर है वो डायरेक्ट आपके कस्टमर को दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यू, है ना. ऐसा हो सकता है कि आपकी बिहाफ पे आपने फॉर एग्जांपल वो मटेरियल वहां पे भेजा और वो मटेरियल डायरेक्ट उनके पास जा रहा है थ्रू योर एक्सटर्नल प्रोवाइडर. ठीक है, तो ऐसे प्रोवाइडर्स के ऊपर भी आपको कंट्रोल्स लगाने हैं. और थर्ड जो है, अ प्रोसेस आर और अ पार्ट ऑफ प्रोसेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस जो रहेगी हमारी, फॉर एग्जांपल हीट ट्रीटमेंट, या आप जो बना रहे हो सकता है उसके अंदर आपके पास मिक्सर नहीं है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू डोंट हैव अ मिक्सर फॉर दैट वन. तो आपने फॉर्मुलेशन बनाया and you send it to the another supplier, your external provider, क्योंकि आपके पास मिक्सिंग की फैसिलिटी नहीं है, so you sent it there and you got it mixed. ठीक है, आपने मिक्सर से लाया वहां से मिक्सर से, एंड अगेन आपके पास जब वापस आया वो मटेरियल, आपने उसके अंदर और प्रोसेसिंग जो करनी थी वो की हमने, है ना, और फिर आपने वो मटेरियल बना के भेजा. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नली प्रोवाइडेड processes. You can also say outsource processes. ठीक है, तो आपके केस में कोई आउटसोर्स प्रोसेस है मिस्टर प्रशांत? इज एनी प्रोसेस यू आर आउटसोर्सिंग और ऑल थिंग यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑन योर ओन? आई एम नॉट सेइंग प्रोडक्ट. No, sir. We are manufacturing at our own. है ना, नो पार्ट ऑफ योर प्रोसेस इज आउटसोर्स्ड. No, sir. हाँ, so okay, this is not applicable to you. बेसिकली यू डोंट हैव दैट, है ना, यू डोंट हैव एनी आउटसोर्स प्रोसेस. बट कहीं कहीं पे हो सकती है, जैसे कोई गियर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसने रॉ मटेरियल लिया, गियर का जो ये करना था, मशीनिंग करना था, सब कुछ किया उसने और उसके बाद गियर बनाया, बट नाउ ही डोंट हैव द फैसिलिटी फॉर. हाँ, हेलो. Our product are licensed as per the manufacturing license taken from FDA. So it clearly states that all our manufacturing process is inside our premises. हाँ, तो इसका मतलब यू कैनॉट आउटसोर्स, है ना, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू, यू कैनॉट इवन आउटसोर्स ऑल्सो, है ना. बट दिस ISO 9000 इज जेनरिक, इट इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. तो कहीं पे समझो कोई गियर बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, हो सकता है उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है फॉर द हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेटअप फॉर एग्जांपल. तो उसके पास मशीनिंग की फैसिलिटी है, सब कुछ है, तो उसने मशीनिंग किया, गियर बना दिया, बट ही कांट डू द हीट ट्रीटमेंट. बट हीट ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, उसके सिवा प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा. सो दैट दिस क्या करेगा वो, ही विल आउटसोर्स, ही विल सेंड इट आउटसाइड एंड गेट इट हार्डन्ड टू द रिक्वायर्ड लेवल, है ना. सो दिस इज कॉल्ड देन आउटसोर्स प्रोसेस, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस है. अगेन वो जब बैक आएगा इनके पास तो क्या करेगा, नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल अगेन कैरी आउट सर्टन थिंग्स ऑन दैट और नॉट कैरी आउट, पैक करेंगे और कस्टमर को भेज देंगे. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ आउटसोर्स प्रोसेस. अब इनके ऊपर भी क्या कंट्रोल लगाने हैं, है ना, आपको डिटरमाइन करना है कि क्या कंट्रोल्स हम उसके ऊपर लगाना चाहते हैं. ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल मीन्स, एक तो होता है कि आप उनका जो ऑडिट वगैरह करोगे, क्या उनके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आप कोई कंट्रोल्स लगाना चाहते हो, वो हमको जब हम नेक्स्ट क्लॉज में जाएंगे वहां पे आपको और क्लियरली दिखाई देगा. पर इसके अंदर ये बोला है जनरल में कि आपको कंट्रोल लगाने हैं, है ना, मीन्स डिटरमाइन करना है, यू नीड टू डिटरमाइन द कंट्रोल्स. ठीक है, हर कोई प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होने वाला है, आपके फिनिश प्रोडक्ट में जो इनकॉर्पोरेट होता है, वो आपके उसके ऊपर कंट्रोल लगाने हैं, ऐसे प्रोवाइडर्स के ऊपर.
अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सप्लायर से डायरेक्ट आपके कस्टमर के पास जा रहा है तो भी आपको उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाने हैं ऐसे एक्सटर्नल प्रोवाइडर पे, और अगर कोई प्रोसेस आउटसोर्स किया गया है तो ऐसे प्रोवाइडर के ऊपर भी आपको कंट्रोल्स लगाने, डिटरमाइन करने हैं। क्या कंट्रोल लगाने हैं हम अगली बार देखेंगे, हम इस नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, डिटरमाइन एंड अप्लाई क्राइटेरिया फॉर, किसके लिए, इवेल्युएशन, हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड रीइवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर। तो आपके यहां पे डिटरमाइन करना है आपको क्राइटेरिया और अप्लाई करना है क्राइटेरिया इवेल्युएशन के लिए। तो हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट अ सप्लायर, अ प्रोवाइडर, है ना, नया प्रोवाइडर है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में नाउ आई वांट टू सप्लाई द मटेरियल, आपका जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है आई वांट टू सप्लाई, ओके। सो आप क्या मुझे डायरेक्टली परमिट कर दोगे, विल यू परमिट मी टू सप्लाई यू द मटेरियल डायरेक्टली? आप क्या करोगे, नॉर्मल केस में क्या करते हो, आप डायरेक्टली अलाउ कर देते हो? यस, समबडी स्पीक अप। क्या करेंगे हम, क्या हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर को डायरेक्टली अलाउ कर देंगे? हम क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं ऑन सर्टन क्राइटेरियाज, है ना। अब वो क्राइटेरिया जो होता है योर कंपनी टू कंपनी विल वेरी, आपको किस तरह से इवेल्युएट करना है वो हर एक कंपनी का अपना अलग अलग तरीका रहेगा। नॉर्मल केस में आई विल सी कि उनके पास जो उनका लीगल स्टेटस है वो मैं चेक करूंगा, उनका टर्नओवर हो गया या कितनी बड़ी फैक्ट्री है ना, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर, ठीक है, वो उसके ऊपर मैं उनको इवेल्युएट करूंगा एंड देन आई विल सिलेक्ट। सो इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर, है ना। So evaluation will be on certain points. It can be on commercial point, it can be on quality points, it will be on the plant and machinery equipment capacity. वो आप सब evaluate करोगे ना, तभी तो आप select करोगे उसको। So you will evaluate and selection. So आपको determine करना है what kind of criteria you want to apply for the evaluation, for the monitoring, for the selection. Once it is selected, है ना, एक बार अगर सिलेक्ट हो गया, आई स्टार्टेड सप्लाइंग यू द प्रोडक्ट, अब आप मेरा परफॉर्मेंस मॉनिटर करोगे कि हाउ इज माय परफॉर्मेंस, हाउ इज माय डिलीवरी परफॉर्मेंस, हाउ इज माय क्वालिटी परफॉर्मेंस, हाउ इज माय सर्विस परफॉर्मेंस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, यू नीड टू मॉनिटर एंड देन यू नीड टू गिव द फीडबैक ऑल्सो टू द सप्लायर। आपको मुझे फीडबैक देना पड़ेगा कि yes, these are the areas where you are lacking or these are the areas where you are doing good. So you need to encourage me also and you need to caution me also कि yes, these are the areas of concern, you need to take action on that. Your performance is not at par with the requirement. अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका कंपनी का अलग अलग ये रहेगा, क्राइटेरिया रहेंगे कि अगर आपकी रेटिंग इतनी कम है, कॉन्जिक्यूटिव 3 महीने अगर कम आती है, कॉन्जिक्यूटिव 6 महीने कम आती है, you are not taking the action, your service rating is going down, quality rating is going down, you will be suspended, है ना, और blacklisted, जो भी आपको टर्म यूज करना है कंपनी पर्सपेक्टिव में आपको वो करनी है ना। ISO 9000 नहीं बोल रहा कि ब्लैकलिस्ट करो, है ना, इट इज योर प्रोरेगेटिव, आपको क्या करना है, बट आपको उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है और जो एक्शंस लेनी है वो लेनी है। एंड देन रीवैल्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, इवेल्यूशन तो आपने कर लिया इनिशियल स्टेज पे कि जो भी हमारे चेक पॉइंट्स थे उसके बेस पे, नाउ यू नीड टू री इवेल्युएट ऑल्सो, उसके लिए भी आपको क्राइटेरिया डिटरमाइन करना है। नॉर्मली जो उनका सप्लायर का परफॉर्मेंस है साल भर का, और 1 साल में 2 साल में आपको रीइवेल्युएट करना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रोवाइडर इज वर्दी ऑफ कंटिन्यूइंग, क्या हम उसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है ना। दिस इज डिटरमाइन एंड अप्लाई क्राइटेरिया फॉर दिस थिंग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट। उनकी एबिलिटी क्या है टू सप्लाई यू द मटेरियल विच इज
कंफर्मिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, उसके बेस पे आपको ये 4 चीजें करनी है. व्हाट इज दैट? इवेल्युएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रीइवेल्युएशन. अब क्राइटेरिया क्या होता है कि आप वंस इन ईयर करोगे, साल में करोगे, कितना करोगे, कितना परसेंटेज आप उसको मानते हो कि यस, अगर 80 के ऊपर है तो यस कंटिन्यू, 70 से 80 के बीच में तो नो, नीड द एक्शन प्लान, है ना. और शॉर्ट टर्म के लिए फिर आप उसकी ये कर दोगे, जो क्वांटिटी है, जो भी सप्लाई क्वांटिटी है, हाफ कर दोगे. एंड अगर उसके नीचे है, 50 के नीचे है, तो यू विल ब्लैक लिस्ट. कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. The organization shall retain documented information. The organization shall retain documented information of these activities. कौन सी एक्टिविटी? इवेल्युएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिवैल्यूएशन. इसकी जो एक्टिविटीज है, इसकी हमको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करके रखनी है. और अगर इससे कोई नेसेसरी एक्शन अराइज होती है, जैसे कि यस मिस्टर प्रशांत. सर, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स में क्या डिफरेंस हो जाता है? नहीं, इट इज सेम. रिकॉर्ड इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. Okay. है ना. Normally we use this record as a term for regular purpose. No, record is one of the kind of documented information. Like quality policy needs to be available as a documented information. So quality policy is not your record, है ना. या फिर जो हमारी प्रोसेसेस है, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उन्होंने बोला है कि इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इट शुड बी अवेलेबल एज ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस. सो प्रोसेस आर नॉट रिकॉर्ड बेसिकली. सो रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमारे, इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. Okay. है ना. डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मींस हम जिसको कंट्रोल करते हैं और जिस मीडिया पे है उसको भी कंट्रोल करते हैं. Sir, in our case, we are having a manufacturing record, what we called as MFR, Master Formula Record. हाँ. उसमें it covers all the documentation from initial stage to end product. हाँ, And for batch, we are having the batch manufacturing record. We have to maintain it as per the statutory requirement. Yes. तो ये जो रिकॉर्ड आई एम टेलिंग For यू, 3 years or 7 years. हाँ, तो रिकॉर्ड्स आर बेसिकली वन ऑफ द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. Apart from that, this standard has asked for various different documented information. जैसे हमने देखा था कि क्वालिटी पॉलिसी शुड बी अवेलेबल एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, या शुड बी अवेलेबल, है ना, एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. तो आपको रहनी है, तो इट इज नॉट अ रिकॉर्ड बेसिकली. क्वालिटी पॉलिसी इज नॉट अ रिकॉर्ड, इट्स अ डॉक्यूमेंट, है ना. लाइक हियर you have to retain the document of evaluation, selection, monitoring of performance and revaluation. तो क्या आपके पास, फॉर एग्जांपल, आपका जो भी XYZ सप्लायर अभी है, इफ आई आस्क यू हाउ यू हैव इवेल्युएटेड देम, तो आपको मुझे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा. आपके पास जो इवेल्युएशन का, रिवेल्युएशन का जो फॉर्मेट बनाया होगा आपने, और जो पिछले साल भरा होगा, या एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन दैट सप्लायर जो आपने फिलअप किया होगा फॉर्म, उसकी जो रेटिंग मिली होगी, है ना. या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, हाउ यू आर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, आप उसको किस क्राइटेरिया पे मॉनिटर कर रहे हो, वेदर इट इज अ क्वालिटी रेटिंग, डिलीवरी रेटिंग, सर्विस रेटिंग, आपने कुछ बाइफरकेट करके रखा है क्या ऐसा, आर यू मॉनिटरिंग दैट परफॉर्मेंस. वो चीज जो है मुझे डॉक्यूमेंट, एज अ डॉक्यूमेंट मेरे पास रहनी चाहिए. वो एज अ रिकॉर्ड भी हो सकता है. अगर आप फॉर्मेट है तो फॉर्मेट को जब भरते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है ना. फॉर्मेट्स आर बेसिकली ब्लैंक, फील्ड फॉर्मेट्स बिकम्स द रिकॉर्ड, है ना. तो आपको ये देखना है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर के लिए आपके पास क्या है. एक तो आपने प्रोसेसिंग का आपके पास तो पूरा रहेगा ही रहेगा, जो भी आपका मास्टर फॉर्मूला जो भी रहते हैं वो तो रहेगा ही आपके पास. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो चल रहा है क्लॉज, इट इज फॉर द एक्सटर्नल प्रोवाइडर. सर, वेंडर सिलेक्शन और कॉन्ट्रैक्चुअल सिलेक्शन के इनिशियल डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं. हाँ. और पीरियडिकली उसका जो रिव्यू होता है या ऑडिट होता है, तो वो डॉक्यूमेंट भी वी मेंटेन. यस, दैट सेटिस्फाइज, है ना, क्योंकि उसके जो क्राइटेरिया है क्या अप्लाई करना है, वन ऑफ द क्राइटेरिया कैन बी ऑडिट्स. आप हाउ यू आर रिवैल्यूएटिंग, इट कैन बी बेस्ड ऑन द ऑडिट्स. बहुत बार हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स का ऑडिट भी करते हैं, कभी ईयरली करते हैं, कभी वंस इन 2 ईयर्स करते हैं. आपका एक प्लान बना रहता है, जो आपके क्रिटिकल सप्लायर्स रहते हैं उनका आप ऑडिट करते हो.
As per schedule we carry out that. हाँ, so that is उसकी documented information आपके पास available रहती है. It is written as a document. You are not just going there and verbally auditing, है ना. आपके पास audit check sheet होगी या जो भी आपका format बना होगा audit का, जिसके अंदर आप उनकी वेरियस चीजें, वहां का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कैलिब्रेशन हो गया, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हो गई, बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं. एंड दैट वेरीज योर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. सो यू आर मेंटेनिंग दैट वन. अगर आपके पास इवेल्यूएशन के टाइम के डॉक्यूमेंट है, आप जब इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन करते हो उसके डॉक्यूमेंट है, आप उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हो बेस्ड ऑन जो उनका आपके पास मटेरियल आता है हर महीने, एंड साल में आप एक बार जो है इवेल्यूएशन करते हो. नाउ इट कैन बी वंस इन ईयर, इट कैन बी वंस इन 2 years. इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ISO 9000 is not dictating any term of that particular or period for the reevaluation. अगर आप साल में एक बार करते हो, बाय वे ऑफ ऑडिट करते हो रिवैल्यूएशन, वेल एंड गुड, बट वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए आपके पास, है ना. ये जो एक्टिविटी है इसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए. दिस इज व्हाट दिस स्टैंडर्ड इज आस्किंग फॉर. ओके मिस्टर प्रशांत. Yes sir, yes, understood. Okay. Now, type and extent of control. What kind of controls, है ना, किस तरह के कंट्रोल्स हम लगाएंगे और किस लेवल तक के लगाएंगे. तो इसमें क्या बोला गया, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी to consistently deliver conforming products and services to the customer. ये आपको इंश्योर करना है. अब अगर एज अ ऑडिटर मैं आपको पूछूंगा हाउ यू आर इंश्योरिंग, है ना, इसके ऊपर अभी एज ऑडिटर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा. यहां पे बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर. सो नाउ आई विल आस्क हाउ यू आर इंश्योरिंग और हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंश्योरिंग that externally provided products, for example product आ रहा है तो externally provided products are not adversely affecting your ability to deliver conforming products to your customer, है ना. so आप बोलोगे कि yes we are giving the specification to the customer, supplier. On receipt we are testing the material as per our sampling plan, है ना. We are periodically carrying out their audit. Maybe once in a year you can say we are reevaluating our supplier. We are reevaluating suppliers quality management system so that we have confidence that whatever the material or services we are getting from them are conforming to our requirement, and the material which is conforming to our requirement, if we use that, we know that yes it will not adversely affect our final products that is going to the customer. Finish. तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि yes we have certain controls in place, है ना. हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि हमारे सप्लायर से कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं आए जो कि हमारे प्रोडक्ट को एडवर्सली इंपैक्ट करे. द ऑर्गेनाइजेशन शैल व्हाट इट शैल इंश्योर कि एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस जो है वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल में रहे, विद इन द कंट्रोल ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. तो आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल में आपके एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेसेस रहे. जो प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, नॉट प्रोडक्ट्स वगैरह की, क्योंकि वो आपके क्यूएमएस में नहीं आ सकती है. आपका क्यूएमएस की जो बाउंड्री है ना, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड है ना. कुछ पार्ट जो है आप इंटरेक्ट करते हो सप्लायर के साथ, दैट इज डिफरेंट थिंग, और कस्टमर के साथ, बट आपका क्यूएमएस में उनकी जो प्रोसीजर्स है आपके सप्लायर्स की वो नहीं आ सकती है. बट अगर आपके यहां से कोई प्रोसेस आउटसोर्स हो रही जो कि आपके केस में नहीं है बट हो सकता है किसी और के केसेस में हो, तो अगर कोई ऐसी एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेस आप है, जैसे मैंने बताया था गियर का जो आउटसोर्स किया है हमने हीट ट्रीटमेंट, अब ये जो हीट ट्रीटमेंट हमने आउटसोर्स किया है इसका जो इसके रिलेटेड जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा वो आपके कंट्रोल में रहेगा. मींस व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? आपके क्यूएमएस का कंट्रोल कैसे होगा? बाय वे ऑफ एसओपीज, बाय वे ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शंस,
बाय वे ऑफ कंट्रोल प्लान। तो ये जो है, इनकी जो चीजें हैं, ये आपके कंट्रोल में होना कि व्हाट इज द टेम्परेचर दे आर फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर साइकिल, एसओपीज, पर्सनल क्वालिफिकेशन, जो भी रहेगा वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट रहेगा। वो आपकी प्रोसीजर्स रहेगी जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो हाउ यू विल इंश्योर कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सही आएगा? And it is not a externally provided product, basically it is a externally provided process। और प्रोसेस आपको पता है कि मुझे अगर प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर चीज चाहिए तो मुझे प्रोसेस में क्या करना है, आपके कंट्रोल से जो उनके ऊपर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है ना? डिफाइन बोथ, क्या डिफाइन करना है? द कंट्रोल दैट इंटेंड to apply to an external provider and those it intends to apply to the resulting output। क्या हो गया इसका मतलब कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाओगे आप ये बोल सकते हो कि यस हम ईयरली ऑडिट कर रहे हैं। नाउ ऑडिट करना इज नॉट आर यू ऑडिटिंग द प्रोडक्ट और आर यू ऑडिटिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर? आप क्या करते हो? वहां जाके प्रोडक्ट का थोड़ी ऑडिट कर रहे हो आप तो उनके सिस्टम को ऑडिट करते हो। तो इट मींस इट इज बेसिकली द कंट्रोल दैट यू हैव अप्लाइड ऑन द और यू इंटेंड टू अप्लाई ऑन द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, है ना? ये कंट्रोल आपने उनके ऊपर लगा है। ऑडिटिंग इज वन ऑफ द कंट्रोल। एंड चेकिंग ऑफ योर इनकमिंग प्रोडक्ट, या फिर उनसे आप एमटीसी मंगाते हो एट द बिफोर द डिस्पैच, ऑल दीज आर कंट्रोल दैट यू इंटेंड टू अप्लाई ऑन द रिजल्टिंग आउटपुट। ठीक है? And C is take into consideration what? The potential impact of externally provided processes, products and services on the organization's ability to consistently meet customer and applicable legal requirements, statutory and regulatory requirements। तो आपको आपके कंसिडरेशन में लेना है ऑर्गेनाइजेशन को। द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक इनटू कंसिडरेशन कि एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशंस की एबिलिटी पे, है ना, एबिलिटी टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या पोटेंशियल इंपैक्ट है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, आपको पोटेंशियल इंपैक्ट पता करना है ना, वो कंसीडर करना है आपको। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ये आपको कंसीडर करना है कि जो कंट्रोल्स एक्सटर्नल प्रोवाइडर ने लगा के रखे हैं उसके वहां पर, है ना, उनके वहां पर जो कंट्रोल्स लगा के रखे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल्स दे आर डूइंग, वेरी योर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट जो भी कंट्रोल्स लगा के रखे हैं क्या वो इफेक्टिव है, ये आपको कंसिडर करना है। एंड डी, डिटरमाइन द वेरिफिकेशन और अदर एक्टिविटीज necessary to ensure that the externally provided process, products and services meet the requirement, है ना? तो जब भी आपको डिटरमाइन करना है आपको क्या, कि जब भी हमको सप्लायर की यहां से कोई मटेरियल आता है या फिर सर्विस आती है और इट इज अ प्रोसेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है या बाकी सब चीजें की रिक्वायरमेंट्स है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी हमको, है ना? तो वो एक्टिविटीज क्या रहेगी? इट कैन बी इन बाय वे ऑफ इनकमिंग इंस्पेक्शन, है ना, इट कैन बी बाय वे ऑफ सम मटेरियल टेस्टिंग डाटा रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर, है ना, इट कैन बी बाय मींस ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, कि आपने आपका रिप्रेजेंटेटिव या थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को आपके सप्लायर के प्रीमाइसेस पे भेजा और वहां पे उनको बोला कि आप इस प्रोडक्ट को टेस्ट करो, अपने विटनेस करो टेस्टिंग, and then only you supply this material to us। So these are basically all the controls you are applying। कभी कभी हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी रिपोर्ट मांग सकते हैं आप। So basically you are not relying on your suppliers result, you are asking them to please get the samples tested from the outside laboratory, है ना, maybe NABL laboratory or whatever the सर्टिफिकेशन यू वांट फॉर दैट लेबोरेटरी, उनके थ्रू ही आप इसको चेक कीजिए एंड वी वांट द रिजल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच
थ्रू द थर्ड पार्टी टेस्टिंग ओनली। तो ये क्या है, सब तरह के वेरिफिकेशन मेथड्स है या ये सब तरह के कंट्रोल्स है हमने अप्लाई किया है। अल्टीमेटली 8.4.2 बोलता है कि आपको किस तरह के कंट्रोल्स और किस टाइप के कंट्रोल और कहां तक आपके एक्सटर्नली प्रोवाइडर्स पे लगाने हैं। अल्टीमेट एम क्या है कि आपके प्रोवाइडर से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है that should be meeting all your requirement. It should not adversely impact the customer's requirement. आपको कस्टमर के पास कंफर्मिंग प्रोडक्ट जाना चाहिए, उसके लिए आपको सब ये चीजें करनी है ना, जो भी कंट्रोल्स वगैरह अप्लाई करने हैं। इट इज एमिंग ओनली टू रिसीव अ कंफर्मिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर। यहां तक किसी को कोई इशू? ओके, No, sir. No, हाँ, sir. इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। अब हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर से जब कुछ लेते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग सर्टन इंफॉर्मेशन टू देम, है ना, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई तो देर आर चांसेस कि हमको प्रोडक्ट भी सही ना मिले। सिमिलर वे, जब हम हमारे पास कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती है जो हम डिटरमाइन करते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आई तो क्या होगा, वी विल ऑल्सो, देर आर चांसेस कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इट विल नॉट बी मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसकी, हमने प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया। सिमिलर वे, जो इंफॉर्मेशन हम हमारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को दे रहे हैं वो भी एडिक्वेट होनी चाहिए, ठीक है ना, इट शुड बी एडिक्वेट सो दैट सप्लायर उसको समझे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर इज आल्सो फॉलोइंग सर्टेन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड वेदर इट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और नो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आप जब तक आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली नहीं समझोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सप्लाई मटेरियल टू द कस्टमर कंफर्मिंग ऑल देयर रिक्वायरमेंट, satisfying all their requirements, है ना। So the organization shall ensure the adequacy of requirements prior to their communication to the external provider. आपको इंश्योर करना है, आपने कस्टमर सप्लायर को भेजने के पहले आपको इंश्योर करना है कि जो भी हम रिक्वायरमेंट है इट इज एडिक्वेट। अब ये कैसे इंश्योर करते हैं हम? बाय वे ऑफ मेकिंग द स्पेसिफिकेशंस फॉर द रॉ मटेरियल दैट वी बाय। अगर हम कोई प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट हम सप्लायर को प्रॉपरली देते हैं। अगर कोई सर्विस हम बाहर से ले रहे हैं तो भी हम हमारी रिक्वायरमेंट उनको देते हैं ना। फॉर एग्जांपल यू आर आउटसोर्सिंग, जस्ट सिंपल एग्जांपल, मटेरियल हैंडलिंग के लिए आप इक्विपमेंट बाहर से ला रहे हो, ओके। तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर अगर हमारा है, वहां से हम लेके आ रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, आप उनको बोल दोगे कि मुझे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भेज दो, है ना। आप अगर बोलोगे कि मुझे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भेज दो, what he will send, he can send forklift also, he can send you hydra also, है ना, he can send you earthmower also, क्या कुछ भी भेज सकता है। You need to specify him, आपको क्या चाहिए, which kind of material handling equipment you want, आपको कब तक के लिए चाहिए, कितने टन की चाहिए, वेदर विद द ड्राइवर और विदाउट ड्राइवर चाहिए, है ना। कभी कभी फोकलिफ्ट रहती है तो यूर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फोकलिफ्ट ड्राइवर, सो यू जस्ट वांट अ फोकलिफ्ट, है ना। किस बेसिस पे चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आपको प्रॉपरली उनको मेंशन करनी है। जब आप ये मेंशन करोगे तभी आपके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट सर्विस आएगी या प्रोडक्ट आएगा। The organization shall communicate to external provider its requirement for, किसके लिए रिक्वायरमेंट भेजनी है? The organization shall communicate
requirements for the processes, the products and services to be provided. क्या चाहिए आपको उसकी इंफॉर्मेशन, the approval of products and services का, methods, process, equipment का, the release of products and services. ये क्या होता है ना? तो आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू प्रोडक्ट सर्विस तो ठीक है, आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया स्पेसिफिकेशन, इज दैट इनफ? है ना, आपने स्पेसिफिकेशन किया. हो सकता है देयर आर सर्टन थिंग्स वेयर इन यू वांट सर्टन मेथड्स टू बी फॉलोड, और वो क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं उसका भी अगर आपको अप्रूवल कराना है पहले, तो यू विल आस्क द सप्लायर टू प्लीज सेंड योर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, गेट द अप्रूवल, देन ओनली प्रोसीड फर्दर. है ना? सो जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, वो आप अप्रूव करना चाहते हो, या व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दे आर यूजिंग उसको आप अप्रूवल करना चाहते हो एक्सटर्नल प्रोवाइडर की, तो आपको वो उनको कम्युनिकेट करना है. ओके, you need to communicate this requirement to them. Competence, including any required qualification of person. For example, if you are taking a welded product, है ना, ठीक है, अगर हम वेल्डिंग प्रोडक्ट लेते हैं, देयर इज सर्टन वेल्डर क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट की यस, जो भी हमारा वेल्डिंग करता है आपके यहाँ का, दैट पर्सन शुड बी क्लासिफाइड वेल्डर एज पर दिस एंड दिस, जो भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए उसका, है ना, जो उनको क्लासिफाइड वेल्डर चाहिए जो भी है, उस तरह से आपको मेंशन करना है आपके पीओ के ऊपर, परचेस ऑर्डर्स के ऊपर, या जो भी आप टर्म यूज करते हो, है ना, वो फॉर्म के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए. या अर्लियर कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर लोगों में क्या कॉम्पिटेंस होना चाहिए. सेकेंडली, अगर आपकी टेस्टिंग रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है कि यस दैट पर्सन शुड बी एनडीटी, जो हम करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसकी लेवल 1 लेवल 2 जो भी होती है, क्या वो उसके हिसाब से ये होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि उनके जो लोग हैं क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, वो आपको उनको कम्युनिकेट करना है. दिस इज comes under this information that you are giving to your external provider. The external provider's interaction with the organization. ठीक है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो आप प्रोडक्ट उनको दिया है, तो आपको लगता है कि इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग में जब वो आएगा, दैट टाइम यू वांट टू गो एंड विटनेस दैट प्रोडक्ट, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है. ये हो सकती है रिक्वायरमेंट आपकी कि योर पर्सन, दिस बैच शुड बी प्रोड्यूस ओनली व्हेन योर पर्सन और ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर पर्सन. सो ऑल दीज रिक्वायरमेंट नीड्स टू बी गिवन टू देम, यानी आपको उनको कम्युनिकेट करनी है. उनका जो इंटरेक्शन आपके साथ रहेगा, अगर आपको लगता है कि इंटरमीडिएट टेस्टिंग के रिपोर्ट, प्रोडक्ट की रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए, तो वो आपको उनको मेंशन करना पड़ेगा. मटेरियल तैयार होने के बाद में उसके टेस्ट रिपोर्ट आपके पास आने चाहिए. दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू हैव, डॉक्यूमेंट्री इंटरेक्शंस. गॉट इट? कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स परफॉर्मेंस टू बी अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. सप्लायर को आपको बताना पड़ेगा कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग वो आप अप्लाई करने वाले हो उनके ऊपर, उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए वो आपको कम्युनिकेट करना है. उसके रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आपको कम्युनिकेट करना है उनको. देन वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज दैट द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स कस्टमर इंटेंड टू परफॉर्म एट एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स प्रीमाइसेस. हमने देखा था वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इसके अंदर आता है फॉर एग्जांपल विटनेसिंग द टेस्टिंग और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन. अगर आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना है और योर पर्सन वांट टू गो देयर एंड विटनेस द टेस्टिंग और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज, कंफॉर्मेंस एक्टिविटीज, दैट कम्स अंडर द वेरिफिकेशन.
पर आप क्या पे कर रहे हो, उनके यहाँ पे जाके कर रहे हो। क्यों करोगे आप? बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जब हमारे पास मटेरियल आएगा और आपके प्रीमाइसेस में आप चेक करोगे, उसके अंदर कुछ फेलियर मिला, अगेन यू विल लूज द टाइम, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, है ना। तो हमने जो रिस्क मिटिगेशन की बात की थी, इफ यू पीपल आर रिमेम्बरिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज देयर related to the one of our stakeholder or one of our interested parties, that is our supplier. Non-conforming material can come to your organization. फिर क्या होगा, फिर आपका स्टॉक में प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, योर प्रोडक्शन विल हैम्पर। अब इस चीज को हटाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू कैन टेक? अगर ये प्रॉब्लम मटेरियल ज्यादा ही इशू वाला है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेल द पीपल और योर एक्सटर्नल प्रोवाइडर कि जो भी आप मटेरियल बनाओगे, वी विल कम टू योर प्रीमाइसेस एंड इंस्पेक्ट इट, वी विल विटनेस द इंस्पेक्शन। अब क्या होगा, अगर इंस्पेक्शन फेल हो गया तो आप वहीं पे लॉट को रिजेक्ट कर दोगे। सो आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम था, अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे पहुंचने को उस मटेरियल को 5 दिन लगते हैं, हाउ मेनी डेज, 5 डेज, तो वो 5 दिन में जब आपके पास पहुंच रहा है मटेरियल, फिर आप चेक करोगे और रिजेक्ट करोगे, तो अल्टीमेटली यू हैव लॉस्ट दिस 5 डेज, है ना। एंड देन इंटरेक्शन में टाइम चला जाएगा 2-4 दिन की, नहीं मटेरियल तो अच्छा था, नहीं था, जो चलते रहेगा, तो 10 दिन आपके चले गए। बट इफ यू सेंड योर पर्सन एट द दैट प्रीमाइसेस, गेट इट टेस्टेड, और अगर वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, आपके 10 दिन बच गए। दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द अनदर बैच एंड देन दे विल डिलीवर इट टू यू। सो जो हमारा लॉस ऑफ टाइम है उसको बचाने के लिए, इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी, नॉट कंपल्सरी, है ना, नॉट कंपल्सरी, इट इज नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने सफिशिएंट इन्वेंटरी रखी है, कस्टमर हमारा जो सप्लायर है वो भी रिलायबल है, देयर आर वेरी मिनिमल चांसेस, तो आप सप्लायर से मटेरियल आपके आप ही बुलाओ, आपके आप ही वेरीफाई करो, नो नीड टू वेरीफाई एट योर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। प्रीमाइसेस, ठीक है। सो आपको ये कम्युनिकेट करना है, दिस यू नीड टू कम्युनिकेट। देन अगर आपके कस्टमर, ठीक है ना, इवन आपके कस्टमर, कभी कभी ऐसा होता है, ओके, फॉर एग्जांपल यू आर द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव गिवन ऑर्डर टू योर कस्टमर्स, आपके एक्सटर्नल प्रोवाइडर पे आपने ऑर्डर दे दिया। नाउ यूर कस्टमर, समटाइम्स आपके कस्टमर को, फॉर एग्जांपल कस्टमर का आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि उसने आपको बताया है कि जब भी आपके एक्सटर्नल प्रोवाइडर उस पर्टिकुलर मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे जो कि आपके यहाँ के प्रोडक्ट में यूटिलाइज होने वाला है और वो बाद में कस्टमर के पास जाने वाला है, नाउ दिस कस्टमर वांट्स कि वो जब प्रोडक्ट बनेगा, ही वांट टू गो एंड विटनेस और ही वांट टू वेरीफाई दिस मटेरियल एट योर सप्लायर्स एंड। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है वो भी आपको कम्युनिकेट करनी है ना। वो आपको किससे कम्युनिकेट करनी है, आपके सप्लायर से, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को सप्लाई करने की, यस आवर कस्टमर विल कम फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज, अगर नेसेसरी है तो, नेसेसरी नहीं है तो नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, तो यू डोंट नीड टू। बट ये आपके जो प्रोसीजर्स वगैरह बनेंगे ना, उसके अंदर ये होना चाहिए कि यस ये हमारा पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, गॉट इट। नाउ यही पॉइंट जो है हमारा कब रिव्यू करना है हमको, जब हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट जब आती है, क्या उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दी हुई है या हमारी पहले रिव्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। जो हम रिव्यू क्यों करना चाहिए, हमको इसी सब चीजों के लिए रिव्यू करना चाहिए, अदरवाइज आप डिनाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है वो डिनाई करता है, नॉट नेसेसरी कि वो सबको अलाउ कर देगा। योर एक्सटर्नल प्रोवाइडर विल में से कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन एक्टिविटी
हम करने नहीं देंगे. Whatever you need to do, you do at your premises. We are not allowing any outsiders in our premises. फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा बोल दिया, नॉर्मली बोलते नहीं बट बोल दिया. तो जब आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था तब ये रिक्वायरमेंट आपने एक्सेप्ट कर ली कस्टमर से, पर आपने सप्लायर से चेक ही नहीं किया था कि वेदर ही इज एबल टू अलाउ यू अलोंग विथ योर कस्टमर और नॉट. अब क्या हो जाएगा, अब वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा, एंड वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, यू आर नॉट मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऑर्डर विल नॉट गो, इट मे गेट कैंसल्ड बिकॉज you are not meeting one of the requirement of your customer. That is why it is very, very important to verify all the customers requirement before committing to supply. इसीलिए बोला हुआ है कि जो हमारी ऑर्डर्स वगैरह होती है कस्टमर की, उसको प्रॉपरली रिव्यू होना चाहिए. दिस इज द रीजन. ठीक है. So if you provide all these information or whatever is applicable information to your external provider, आपके पास जो मटेरियल आएगा वो प्रॉपर ही आएगा, है ना. That material will be proper. So the clause number 8.4, which is related to production, the control of externally provided processes and products and services is over. अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है ना, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दैट क्लॉज, प्लीज रेज इट. अदरवाइज वी विल स्टार्ट विथ क्लॉज नंबर 8.5, है ना, बट विथ अ. सो क्लॉज नंबर 8.5, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन. This clause focus on the production activities, manufacturing activities in your organization. अब हमने क्या किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ लिया, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को भी कंट्रोल में कर लिया है. नाउ यू गॉट द मटेरियल, नाउ यू नीड टू स्टार्ट द प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज, अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो. सो in this clause, and very important clause, the 8.5.1 focuses on control of production and services provision. How you are going to control the production provisions, service provisions. Identification and traceability comes under the 8.5.2. What needs to be identified, how needs to be identified, and how it will be traceable to the material जो यूज किया गया है, to the maybe people, to the machine, to the date, to the shift. क्योंकि जब कभी इशू आते हैं प्रोडक्ट में, है ना, या बिना इशू के भी, इट शुड बी ट्रेसेबल. आपको पता होना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये जो बैच बना हुआ है कब का बना हुआ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, कौन से बैच के इंग्रेडिएंट्स थे उसमें, किसने बनाया था, कौन से मशीन पे बना था, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो you know what all batches needs to be kept under quarantine. ट्रेसेबिलिटी, जैसे कि आज हो रहा है, बेसिकली जब किसी को कोरोना होता है तो दे आर ट्रेसिंग इट बैक, है ना, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जो करते हैं. व्हाट इज दैट? दिस इज नथिंग बट अ ट्रेसेबिलिटी. वन इज आइडेंटिफिकेशन, कि उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करना, जो हम बैच नंबर लिखते हैं, है ना, या छोटी छोटी कंपनी है तो उसके ऊपर जो कॉइल नंबर्स होते हैं, या प्रोडक्ट की जो बॉक्सेस नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, दवाइयों में बैच नंबर लिखा रहता है नॉर्मली. सो दैट बैच इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन. एंड ट्रेसेबिलिटी मींस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बैच नंबर, कैन यू ट्रेस इट बैक टू द रॉ मटेरियल यूज्ड, डेट ऑफ प्रोडक्शन, शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन of at each and every process. अगर वो इंटरमीडिएट प्रोसेस है वहां की भी हम बात कर रहे हैं. देन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स. तो अगर कस्टमर कोई प्रॉपर्टी है जो कस्टमर बिलोंग करती है, बाहर से जो
जो आपके कस्टमर है उनकी प्रॉपर्टी आपके पास है या एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की प्रॉपर्टी है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है ना। कस्टमर की प्रॉपर्टी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मटेरियल। हो सकता है कस्टमर ने आपके पास मटेरियल भेजा हो और वो चाहता है कि उसको आप प्रोसेस करके दे दो, सो इट इज बेसिकली देयर प्रॉपर्टी विच यू नीड्स टू कंट्रोल। देन प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो हमने प्रोडक्शन तो अच्छा किया, कंट्रोल्स भी अच्छे लगाए, एक्सटर्नल प्रोवाइडर से मटेरियल भी अच्छा आया, सब कुछ किया हमने, बट उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए प्रॉपरली। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या हमको उसको टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर पे ही प्रिजर्व करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, उसको प्रॉपर पैकिंग करना है, किस तरह के मटेरियल में उसको पैक करके रखना है, क्या वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। सो यू नीड टू बेसिकली प्रिजर्व इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टोरेज, ड्यूरिंग द डिलीवरी, है ना, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। देन कम्स 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। डिलीवरी करने के बाद भी अगर कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी है, अगर ऐसी चीजें हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट, क्या किस तरह के कंट्रोल्स है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई किया इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने, वो दी है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इन द सर्विसिंग ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर इट इज डिलीवर्ड, तो आपको ये पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी का क्लॉज अप्लीकेबल है। अगर आप मटेरियल देने के बाद यू आर नॉट कैरिंग आउट एनी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, ठीक है, सो यू आर नॉट, दिस क्लॉज इज नॉट अप्लीकेबल टू यू। देन कंट्रोल ऑफ चेंजेस, अगर कोई चेंजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस पैरामीटर, इन द फॉर्म ऑफ एसओपीज, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल, क्योंकि हमने जो प्रोसेस सेट किया था, प्रोसेस को डिजाइन किया था हमने, प्रोडक्ट भले किसी और ने डिजाइन किया हो, प्रोसेस तो आपको डिजाइन करना पड़ता है, और अगर आप प्रोडक्ट भी डिजाइन करते हो, प्रोसेस भी डिजाइन करते हो, देन ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल, कि अगर आपने जो प्रोसेस डिजाइन किया था उसके बेस पे आपने वेरिफिकेशन किया, वैलिडेशंस किए। नाउ फॉर एग्जांपल मिक्सिंग टाइम यू हैव वैलिडेटेड 10 to 15 मिनट्स, अगर आप करते हो 10 to 15 मिनट्स मिक्सिंग करते हो आप, तो यू आर गेटिंग द डिजायर रिजल्ट्स और वो वैलिडेटेड है। नाउ अगर आपको वो मिक्सिंग टाइम आपने 8 मिनट का कर दिया, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दैट, हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर कि ये जो मैंने चेंज किया है वो हमारे प्रोडक्ट को इंपैक्ट नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करेगा हमारा प्रोडक्ट, इट इज नॉट गेटिंग इंपैक्टेड बाय दिस चेंज, वो कैसे इंश्योर करेंगे, वो रिक्वायरमेंट जो है वो इस क्लॉज में बताई गई है। सो लेट अस गो थ्रू ईच एंड एवरी क्लॉज and their requirements. Now in the clause you can see product and service provision. So what is this provision? तो provision का डिक्शनरी मीनिंग है ना, इट इज नॉट गिवन इन द 9000। प्रोविजन का सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज, है ना। सो प्रोडक्शन प्रोविजन मीन्स एक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग so that it is being used for some use. Now production and service provision means the action or activities of producing, है ना, जो भी हम एक्शन ले रहे, जो भी हम एक्टिविटीज ले रहे, फॉर व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर यूज। तो जो भी हम एक्टिविटीज ले रहे, एक्शन ले रहे फॉर डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ द product or processes, products or services which you are sending to your customer for use। ये जैसे मैंने आपको बताया, we are talking about the actual production or manufacturing activity here। तो आप जब शॉप फ्लोर पे का ऑडिट करोगे, किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑडिट करोगे, द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन दिस क्लॉजेस
all these clauses are mainly applicable to them. Now 8.5.1 control of production and service provision. तो क्या बोलते हैं इस क्लॉज में? The organization shall implement, आपको implement करना है as organization, shall implement these activities under control condition, है ना? तो ये जो एक्टिविटीज हम जो कैरी आउट करने वाले हैं वो कंट्रोल कंडीशन में होने चाहिए. कंट्रोल कंडीशन में मीन्स कुछ डिफाइंड कंडीशंस होनी चाहिए. व्हेन वी से कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो कंट्रोल कंडीशन में है ना, विद इन द सेट्स जो हमारे क्राइटेरियाज है उसके विद इन है, तो इट इज टू बी कैरी आउट अंडर द कंट्रोल कंडीशन. एंड व्हाट दिस कंट्रोल कंडीशन, क्या क्या होना चाहिए इस कंट्रोल कंडीशन में? द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. हम कब बोलेंगे कि हमारी जो प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन है, जो एक्टिविटीज है, वो कंट्रोल कंडीशन में है, आपको इंप्लीमेंट करना है. तो ये कंट्रोल कंडीशन क्या रहेगी? द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जो कि डिफाइन करती है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. अभी सर्विसेज के लिए आई एम अवॉइडिंग बिकॉज वी आर नोबडी इज इन द सर्विस इंडस्ट्री हियर. बट अगर जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पे डिपिक्ट हो उस डॉक्यूमेंट में, और सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिपिक्ट हो, जो एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, ठीक है ना, वो उस डॉक्यूमेंट में रहे. तो जैसे हमने बात की वर्क इंस्ट्रक्शंस, एसओपीज, कंट्रोल प्लान्स, क्वालिटी प्लान्स, ये सब चीजें रिक्वायर्ड क्यों रहती है? वेयर इट इज गिवन कि ये चाहिए, इट इज गिवन इन दिस क्लॉज हियर. क्या होना चाहिए हमारे पास? डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि डिफाइन करे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपके यहाँ पे कंट्रोल प्लान्स होंगे या क्वालिटी प्लान्स होंगे, है ना, जो बताता है कि ये जो हमने फॉर्मुलेशन किया इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, या फिर उसके कंटेंट्स कितने होने चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, है ना. तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना. एंड ऑल्सो द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, आपको क्या आउटपुट चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी से, है ना. अगर हिटिंग एक्टिविटी आप वहां पे कर रहे हो, सो आप वहां पे डिफाइन करोगे कि प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मुझे उसकी विस्कोसिटी इतनी चाहिए, मुझे उसका कलर ये चाहिए, मुझे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये चाहिए. दीज आर बेसिकली, और ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए प्रोडक्ट की कि कलर इतना चाहिए मुझे, है ना, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी चाहिए, उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए. ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट्स? टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना अचीव हो जाना चाहिए, या उसका कलर कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का, या फिर उसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए. दीज आर बेसिकली द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड. तो ये डिफाइन होना चाहिए. और नॉर्मली कंट्रोल प्लान, तो आपके यहाँ पे क्या है मिस्टर प्रशांत, आपके यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट नाम देते हो आप? इज इट अ कंट्रोल प्लान, इज इट अ क्वालिटी प्लान, इज इट अ स्पेसिफिकेशन शीट, व्हाट यू कॉल इट दैट यू यूज ऑन द शॉप फ्लोर? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इज डिफरेंट, है ना, तो आप उसको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बोलते हो ना? यस. ओके, है ना. मिस्टर सरवणा, आर यू यूजिंग एनी ऑफ या? Sir, we are having two different activities done. One is manufacturing of a particular molecule or enzyme product, and second one is blending. Okay, blending भी आप कर रहे हो ना? So we are having intermediate product and finished product. These are the two concepts. For both, there are separate specifications. Product. Yes, yes. तो रहेंगे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सभी उसके स्पेसिफिकेशन अलग रहेंगे. उसके आपके पास वर्क इंस्ट्रक्शंस होंगी, है ना, कि मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करना है तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स यू आर फॉलोइंग. हर एक चीज पे ऐसा तो नहीं कि एक प्रोसेस में होता होगा, देयर माइट बी सर्टेन इंटरमीडिएट प्रोसेस भी होती होंगी उसमें. We called it as a master formula record, which contains all the specifications, then SOPs, work instructions, everything is covered. तो and for individual batch production, there is a BMR, which also covered detailed process and their records along with it. आप ये क्यों रखते हो? बिकॉज अगर ये चीजें फॉलो करेंगे तो यू आर इंश्योरिंग कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी प्रोड्यूस मीटिंग ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स.
अगर हम एसओपीज नहीं बनाएंगे, अगर हम रिक्वायरमेंट्स नहीं बनाएंगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई कि ये हमारे रिजल्ट्स अचीव हुए या नहीं हुए हैं, है ना? इट इज बेसिकली अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द ऑल स्टेक होल्डर्स, है ना? आपके जो भी प्रोडक्शन के लोग होंगे, जो भी क्वालिटी के लोग होंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स रहता होगा विच दे रेफर फॉर दी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ड्यूरिंग द टेस्टिंग एक्टिविटीज. सो दिस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अवेलेबल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात करती है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं आपके यहाँ पे, और क्या रिजल्ट अचीव करना है, वो डिफाइन होना चाहिए उसके ऊपर. जो नॉर्मली एसओपी, डब्ल्यूआईज, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, आपकी कंट्रोल प्लान्स या क्वालिटी प्लान्स, इसके अंदर ये सब कवर हो जाता है. द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ सुटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस, ठीक है ना? सो जो भी कंट्रोल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, है ना, दिस नीड्स टू बी कैरिड आउट अंडर कंट्रोल कंडीशन. आपको ये इंप्लीमेंट करना है, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की जो एक्टिविटीज है, it should be carried out in a control position condition. So one is by way of documentation which needs to be followed during this. Secondly, जब आप जो भी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस चाहिए वहां पर वो अवेलेबल रहे, तभी तो वो कंट्रोल में रहेगी आपकी एक्टिविटीज, है ना? तो वहां पे जो भी उस चीज को मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए जो जो रिसोर्सेस लगते हैं, वेदर इट्स अ पर्सन और वेदर इट्स इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी लगते हैं, वो अवेलेबल रहे. तो नॉर्मली जो हमारे क्वालिटी प्लान्स होते हैं, उसके ऊपर जब हम, या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे जब हम बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू मेजर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आपको क्या रिजल्ट चाहिए स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, सो वो कैसे चेक होगा वो भी क्वालिटी प्लान पे डिफाइन रहता है. कब कब चेक होगा, क्या सैंपलिंग उसका प्लान है, वो भी उसके ऊपर मेंशन रहता है. तो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी रहे वहां पर. The implementation of monitoring and measurement activities at appropriate stages to verify that criteria for the control of processes or outputs and acceptance criteria for the products and services have been made, है ना? इसका मतलब क्या है कि आपके पास मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज तो दे दिया आपने, टेस्टिंग इक्विपमेंट दे दिया, है ना? सो मिस्टर प्रशांत, कैन यू टेल मी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉन्फिडेंशियल नहीं है वो, otherwise I will take a general example. ओके, है ना? आई विल टेक अ जनरल एग्जांपल कि हम कोई शीट मेटल का प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड इन दैट देयर इज अ थिकनेस. थिकनेस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज डिफाइंड, है ना? कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द क्राइटेरिया डिफाइंड, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड इज द थिकनेस. ये हमने डिफाइन किया है. अब ये किससे मेजर होगा? तो हमारा वर्नियर से मेजर होगा. वर्नियर कैलिपर एवरीबॉडी नोज, और माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे हम इसको. नाउ इट इज अवेलेबल. Micrometer we have provided, vernier we have provided. Now you need to implement this activity. अब एक कब कब चेक होगा? At what stage you need to check this, है ना? अब जब भी आप इसको चेक करोगे, क्या सैंपलिंग बेसिस पे चेक करोगे, कब चेक करोगे, फाइनल में चेक करोगे, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे चेक करोगे, ये आपका डिफाइंड होना चाहिए, है ना? इसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए. नाउ दी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स कि हमने ये टेस्ट किया था, और क्या टेस्ट करना है इसके लिए हमारे पास क्वालिटी प्लान्स वगैरह है. द यूज ऑफ सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट फॉर द ऑपरेशन, है ना? कंट्रोल प्रोसेस में है. कंट्रोल कंडीशन डजंट मीन ओनली द एनवायरमेंट, है ना? इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज. डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है सब आपके पास रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? उसकी क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेस है हमारे पास, मेजरमेंट, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिसोर्सेस. हमने उसको इंप्लीमेंट भी किया है कि किस किस जगह पे उसको टेस्ट करना है, कब टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारी जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो मीट हो गई है. अगर कोई सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन चाहिए, वो भी हमको वहां पर देना है ना?
वो कंट्रोल कंडीशन है. दिस कंट्रोल कंडीशन इंक्लूड क्या होती है? जो सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट, लाइक कवर्ड शेड चाहिए हमको, है ना, डार्क रूम चाहिए क्या हमको उसके लिए, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. लाइक फोटोग्राफी इज वन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ जो है उसको डेवलप करने के लिए, नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी तो नहीं है वैसा, है ना. पहले जब थे कैमरेज, तो अगर आपको उसको डेवलप करना है तो यू नीड अ डार्क रूम, है ना. तो डार्क रूम इज अ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. वैसे ही जैसे जहां पे फार्मास्यूटिकल है, वो एरिया जो रहता है वो एयर कंडीशनड होता है. दैट इज अ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कि वो एयर कंडीशन रहता है, वहां पे डस्ट अलाउड नहीं रहती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वहां पे मेंटेन करते हैं, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी वहां पर मेंटेन करते हैं, वो पर्टिकुलर जब प्रोडक्ट बनता है. तो दीज आर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स. ताकि Yes, यस sir. मिस्टर प्रसाद. We called it as a clean room area. ओके. It's a classified control conditions what we maintain over there. हाँ, तो आपको फिर इट इज बेसिकली, क्योंकि आप क्यों मेंटेन करते हो? टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं बनेगा, है ना. तो आपने क्या किया है? सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर प्रोवाइड किया है फॉर कैरिंग आउट दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन. हर हो सकता है पर्टिकुलर ऑपरेशन कुछ ओपन में हो जाते हैं, है ना. फैब्रिकेशन का काम है, ओपन में हो सकता है, बट कुछ जो हाई एंड प्रोसेसेस होती है दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना. जैसे हम एक प्रोसेस में काम करते थे, वहां पर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी नीड्स टू बी कंट्रोल्ड सो दैट प्रोडक्ट जो है हमारा था वो करोड ना हो, उसके ऊपर रस्टीनेस नहीं आए. इसके लिए उसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते थे. तो दैट इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, है ना. बहुत सारी जगह पे सनलाइट अलाउड नहीं रहता, डार्क रूम चाहिए रहती कि यस इट शुड नॉट इंटरफियर विद द रिजल्ट्स, इट शुड नॉट इंटरफियर विद द प्रोडक्ट. तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना है. दिस इज व्हाट दिस स्टैंडर्ड इज सेइंग. अब नॉर्मली अगर ये जो कंडीशन रहती है वो मेट होती है ना, दिस रिक्वायरमेंट इज स्टेटेड हियर, बट नॉर्मली आप क्यूएमएस फॉलो करो ना करो, आपको प्रोडक्ट अगर बनाना है तो आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करनी ही पड़ती है, विदाउट विच यू कैन नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट ऑल, मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स. Then the appointment of competent person including any required qualification. कुछ कुछ जगह पे आपको जो है वो क्वालिफाइड पर्सन चाहिए रहते, जैसे क्वालिफाइड वेल्डर्स हो गए, है ना. कुछ जगह पे आपका रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, यहाँ पे जो लोग रहेंगे दे विल बी फ्रॉम विच स्ट्रीम. आप कोई भी उठा के वहां पे नहीं लगा सकते हो. तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज आप कैरी आउट कर रहे हो, वहां पर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना है आपको. अगर वो लोग हैं, इसका मतलब योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर अंडर कंट्रोल, दे आर बीइंग कैरिड आउट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ऐसा उसका मतलब होता है ना. तो कॉम्पिटेंसी जो हमने देखा था 7.2, क्लॉज नंबर 7.2 इज द कॉम्पिटेंस. वहां पे हमने देखा था कि लोगों को कॉम्पिटेंस जो है हमको मैप करना है, कहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से लोग देने हैं. ठीक है ना. अगर आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट है तो ठीक है, स्टोर्स के लिए आपको क्या लोग लगेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी अब कैरी आउट करना है तो आपको किस तरह के लोग रहेंगे, वेदर अ बीएससी इन केमिस्ट्री विल डू एट योर एंड, और बीफार्म पीपल विल डू एट योर एंड, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विल वर्क एट योर एंड, कंप्यूटर इंजीनियर आपको चाहिए क्या, तो जिसका जो काम है वही कर सकता है ना. सो कॉम्पिटेंट पर्सन ने ही वो प्रोसेस कैरी आउट, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करनी है. और अगर कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, फॉर एग्जांपल जो टेस्टिंग क्वालिफिकेशन होता है, एएसएनटी लेवल, एनडीटी लेवल 1 2 जो रहती है ना, एएसएनटी लेवल वगैरह, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? तो वो होनी चाहिए. तो आपको वॉट एवर द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपको वहां पे कॉम्पिटेंट पर्सन रखने हैं. दिस इज व्हाट दिस स्टैंडर्ड इज सेइंग. द वैलिडेशन एंड पीरियडिक रीवैलिडेशन of the ability to achieve planned results of the processes for production and service provision, where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring and measurement. कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं
you need to do validation and periodic revalidation, क्योंकि कुछ उसकी जो characteristics होते हैं ना, you cannot test it. It is not possible to monitor or measure resulting output. Yes, Mr. Prashant. In case of competent person, in हाँ. our case, a few places we have to have a FDA approved or licensed person for manufacturing and testing also. हाँ, this is So that is also statutory requirement. हाँ, so this is qualification. That is the required. This is particular qualification. That's why they have included here. कि कुछ कुछ जगह पे आपको फिर जैसे होता है ना कि जो हमारे फोकलिफ्ट चलाने के लिए पर्टिकुलर वो लाइसेंस के लोग ही लगते हैं, जो फोकलिफ्ट लाइसेंस के साथ ही लगते हैं, है ना? वैसे ही आप Driver with license. हाँ, वो जो फोकलिफ्ट का लाइसेंस है वही चलता है ना? वैसे ही फिर आपने जैसे बताया कि वो एफडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए, इसका मतलब दिस पीपल आर बेसिकली क्वालिफाइड, है ना? उनको कुछ एग्जाम देना पड़ता है तभी उनको वो क्वालिफिकेशन मिलता है, तो दीज आर बेसिकली क्वालिफाइड. Then only the product manufactured under the supervision and process of license competent person. Yes. तो वो फिर आप इसका मतलब अगर वो लोग नहीं है तो your process of producing is not in a control condition. It is not in a control condition. वो लोग है इसका मतलब yes, you are carrying out it in a control condition. Control condition not only means environment, it involves the documentation, it involves the monitoring and measuring resources, it involves the atmosphere, environment of the working, as well as the people who are carrying out these your प्रोडक्शन एक्टिविटीज, है ना? देन आपको वैलिडेशन एंड रिवैलिडेशन करना है. वी हैव सीन दैट व्हाट इज वैलिडेशन, कि हम वो प्रोडक्ट का एक्चुअल जब यूज होने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इट कैन बी योर लेबोरेटरी वैलिडेशन ऑल्सो जो आप करते हो. अब इसका पीरियोडिक रिवैलिडेशन भी करना चाहिए, क्योंकि वैलिडेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस पैरामीटर्स, कि इस प्रोसेस में हमने चलाया, ये फॉर्मुलेशन में चलाया, इतने टाइम तक चलाया, मिक्सिंग किया, जो भी किया, तब हमको ये प्रोडक्ट मिला, है ना? अल्टीमेटली ये जो सब कुछ एक्टिविटीज होती है प्रोसेस की, इट इज थ्रू द मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस. अब अगर वो टाइमिंग में कुछ हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, गलत दिखाना शुरू कर देता है, आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाता है, यू माइट नॉट नोटिस दैट वन, बट आपके प्रोडक्ट पे इंपैक्ट आएगा. इसलिए प्रोडक्ट्स का जो वैलिडेशन एंड पीरियोडिक रिवैलिडेशन, अब रिवैलिडेशन की जो पीरियड है that organization needs to decide, maybe 3 months, maybe 6 months, maybe 9 months, it is up to you. ठीक है? The implementation of actions to prevent human error, पोकायोके, मिस्टेक प्रूफिंग, फुल प्रूफिंग, है ना, वॉट एवर द नेम यू कॉल, जहां पे भी आपकी ह्यूमन एरर होने के चांसेस है, क्या हम वहां पे प्रिवेंटिव एक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वहां पे हमको करना है. Implementation of release, delivery and post delivery activities. तो आपको जो है कंट्रोल कंडीशन में ये प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की एक्टिविटी जो है वो इंप्लीमेंट करनी है, और कंट्रोल कंडीशन जो इंक्लूड होती है वो यहां पर दी है ए से लेके एच तक. ठीक है ना? यहां पे किसी को कोई डाउट? इफ नो देन वी विल मूव टू 8.5.2, है ना? आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो मिस्टर सरवना, व्हाट काइंड ऑफ हियर what kind of control things you are having in your organization? किस तरह का कंट्रोल आप रख रहे हो वहां पे, in terms of competent people, in terms of documentation, in terms of monitoring and measuring? Mr. Sarvana, can you hear me? Yes, sir. We are in Maritime Institute control on the question papers. Okay. है ना? तो आप सर्विस आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो ना वहां पर? इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना? यस सर. यस. हाँ, तो आपके यहाँ पे जो लोग सिखाते हैं, है ना, बिकॉज इट इज अ सर्विस बेसिकली, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट, यू आर बेसिकली गिविंग द सर्विस, है कि नहीं?
सो जो भी लोग आपके यहाँ पे सिखाते Yes. हैं, यू रिक्वायर अ कॉम्पिटेंट पर्सन, है ना, कुछ क्वालिफिकेशन लगता होगा जो लोग सिखाते होंगे उनका। Yes, sir. Instructor, qualified instructor has to be teach the maritime trades. हाँ, तो ये हो गया फिर आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उन लोगों के पास होना चाहिए। सेकंडली, जैसे इन्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन है तो इन्वायरमेंट ऑफ टीचिंग है तो ठीक है, वो आपके सुटेबल रूम्स वगैरह रहने चाहिए, है ना। और मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग मींस जो आप पीरियोडिक उनका इवेल्युएशन करते हो उन लोगों का, है ना, बाय वे ऑफ टेस्ट, बाय वे ऑफ फिजिकल के जो भी थियोरेटिकल टेस्ट वगैरह होते होंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट होते होंगे वहां पर, तो दैट कम्स अंडर दिस वन, है ना। Yes. आपको ये जो है क्राइटेरियाज है आपके, Yes, sir. है ना, कि आपके ये तो प्रोडक्ट के है एक्चुअली, सर्विसेज के जो क्राइटेरियाज है आपके कि हाँ इन्होंने इतना इतना जो पासिंग क्राइटेरिया आपका रहता है, प्रैक्टिकल में कितना होना चाहिए, आपकी थ्योरेटिकल में थ्योरी में कितने मार्क्स होने चाहिए, वो क्राइटेरिया डिफाइंड है आपके इसमें, Yes, sir. Yes. है ना। हाँ, तो ये आपके लिए भी जो सर्विस इंडस्ट्री है, दीज आर लाइक दिस वन, कि जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं, या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ लेक्चर्स विल बी देयर, है ना, उसके अंदर क्या क्या कवर हो जाएगा, सिलेबस जो रहता है ना, सिलेबस इज बेसिकली योर डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रहती है कि एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, आप क्या क्या एक्टिविटी प्रोवाइड परफॉर्म करते हो, तो दैट इज डॉक्यूमेंटेड बेसिकली, हमारा ये सिलेबस है जो भी आपके 1-2 साल का होता होगा कि इसमें हम ये सिखाएंगे, इसमें हम ये सिखाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल बी अप्लीकेबल टू यू पीपल ऑल्सो, सर्विस इंडस्ट्री। देन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। So the organization shall use suitable means to identify outputs when it is necessary to ensure the conformity of products and services. तो फॉर एग्जाम्पल, हम जो आउटपुट्स है हमारे प्रोडक्ट्स के आउटपुट, अभी सर्विस के लिए नहीं है, जो भी हमारे सॉरी सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है, कि जो भी हमारा आउटपुट है ना, उसको सुटेबली आइडेंटिफाई करना है। नाउ प्रोडक्ट के ऊपर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय वे ऑफ बैच, है ना। तो हमारा अगर प्रोडक्ट है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय वे ऑफ बैच, बैच नंबर ये पर्टिकुलर है XYZ, है ना। देन वी राइट मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑल्सो, वेयर एप्लीकेबल वी राइट द एक्सपायरी डेट ऑल्सो, एक्सपायरी डेट भी लिखते हैं। सो वी आर बेसिकली सुटेबली आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और सर्विस को अगर आइडेंटिफाई करना है आपको, तो जो भी हमारा सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर हम उनका जो रोल नंबर है, जो कब हमारा जो सेशन रहता है, एकेडमिक सेशंस वगैरह होता है, वो सब आइडेंटिफाई रहता है ना। यू आर आइडेंटिफाइंग योर सर्विसेज ऑल्सो व्हेन यू हैव प्रोवाइडेड दिस सर्विस, एजुकेशनल सर्विस टू देम। The organization shall identify the status of outputs with respect to monitoring and measurement requirements throughout the production and service provision. तो थ्रू द, जैसे स्टार्ट हुआ, इनकमिंग मटेरियल आया हमारा, वहां से लेके जितने भी बाहर हम उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हर एक स्टेज पे उसको आइडेंटिफाई करना है, आउटपुट को, स्टेटस ऑफ आउटपुट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है with respect to what, monitoring and measurement requirements। तो उसकी जो भी आउटपुट है उसको हमको उसका स्टेटस जो है वो, वेदर इट इज एक्सेप्टेड, वेदर इट इज रिजेक्टेड, वेदर इट इज ऑन होल्ड, वो हमको उसको आइडेंटिफाई करना है एट ईच एंड एवरी स्टेज। और जो ओके है वही आगे जाए हमारा मटेरियल। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंट्रोल यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आउटपुट when traceability is a requirement and shall retain documented information necessary to enable traceability, है ना। तो हम जो बोलते हैं ना कि सर्टिफिकेट ट्रेसेबल है हमारा, और फॉर एग्जांपल इफ यू आर इशूइंग ए सर्टिफिकेट टू योर कैंडिडेट्स, so basically that certificate is traceable। traceable means उस वहां से अगर कोई आपको पूछे कि कैन आई गेट द रिकॉर्ड ऑफ देयर इवेल्युएशन, है ना, कब ये आए थे, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या था, इनके जो भी आईडीज वगैरह है, आईडी प्रूफ्स आपके पास है, व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स और व्हाट दे आर सिक्योर्ड,
वो सब उनके पास होने चाहिए। जैसे मेरे पास है, अगर आप मुझे सर्टिफिकेट नंबर भेजोगे किसी कैंडिडेट का विच इज इशूड बाय क्वालिटी मंत्रा, आई कैन टेल यू कि उन्होंने किस टाइम पे हमारे यहाँ पे ये किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, किस टाइम पे उन्होंने क्लासेस अटेंड किए थे, उनका स्कोर क्या था इंडिविजुअल इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, हम आपको बता सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर जिनको सर्टिफिकेट मिला है, इफ दे रिक्वेस्ट और दे गिव द परमिशन टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन, देन, है ना। तो अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे काम करने जा रहे हैं और दे आस्क कि नहीं ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है या नहीं है, एंड इफ दे वांट टू ट्रेस इट बैक, वी कैन प्रोवाइड ऑल द ट्रेसेबिलिटी। सिमिलर फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना। ईच एंड एवरी स्टेज पे उसका कहीं ना कहीं पे मेंशन होना चाहिए कि कब बना था, कहां पे बना था, किसने बनाया था, और उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करनी है। एंड दिस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। जो प्रशांत जी ने बताया था कि यस दे आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एट ऑफ particular batch in that particular format, and you can get all the information there. It means they have the traceability in place. And it is very important in each and every organization. Traceability is very important. Without that, intermediate process में अगर कुछ खराब हो गया तो you will not come to know. अगर कुछ प्रोडक्ट खराब बन गया तो you will trace it back to the origin through each and every process कि what went wrong, why this batch has been is not meeting our requirement, whether it's a process parameter, whether it's a machine issue, whether it's a ये input material issue, किससे मेजर किया था, वो सब आपके पास होना चाहिए। Now 8.5.3 property belonging to the customer or external providers, है ना। जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है किसको, कस्टमर्स को और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को। The organization shall exercise care with property belonging to customers or external providers while it is under the organization's control or being used by the organization. Now अगर कोई स्पेसिफिकेशन शीट आपके पास आती है कस्टमर की, it is nothing but a customer's property, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है कस्टमर्स की प्रॉपर्टी में, कस्टमर्स की प्रॉपर्टी में आता है और एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी में आता है मटेरियल, कंपोनेंट, tools and equipment, premises, intellectual property and personal data. All these are the customer's property, है ना। Now आपके फॉर एग्जाम्पल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट योर स्टूडेंट्स आर योर कस्टमर। अगर आप ISO 9001 में जाओगे, है ना, मिस्टर सरवना, इज योर ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 सर्टिफाइड? Mr. Sarvana, is your organization certified to ISO 9001? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now for you, your students, है ना, the people who are taking training in your organization are the customer and their personal data जो आपके पास है। अब उनकी जो प्रॉपर्टी आपके पास क्या रहती है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने, जैसे हम पहले टीसी रहती थी हमारी, है ना, तो हमारा जो या बर्थ सर्टिफिकेट रहता था, ऑल दीज आर द आवर प्रॉपर्टी विच वी गिव टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब उनको जो है उसके ऊपर केयर के साथ हैंडल करना है ना। दे कैनॉट डिस्ट्रॉय और दे कैनॉट cause the damage to that property because it's your customer's property, है ना। For educational institute, their students are their customer, है ना? In purview of this quality management system I am talking, है ना। Similarly, अगर आपका external provider कोई रहता है, so their property that your external provider में सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। You have taken a projector for example from your service provider. You are asking a service provider, external service provider, you have taken the projector. Now वो आपके कंट्रोल में जब रहता है तो you need to exercise care with that particular property. You cannot damage that, है ना। This is what this standard is saying.
Similarly, the specifications. If any intellectual property is there for a manufacturing organization, customer provides their drawings, their specifications. So these are basically your customer's property. If customer is sending you certain kind of measuring devices which your organization is not having, they are sending, or they are sending you certain master samples or even some reference samples, all these are nothing but a customer's property, है ना. कभी कभी एज अ मटेरियल इट कम्स आपके पास प्रोसेसिंग के लिए, इट कम्स एज अ मटेरियल ऑल्सो, सो दैट इज नथिंग बट अ कस्टमर्स प्रॉपर्टी. एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स प्रॉपर्टी कैन बी, जैसे आपके पास कुछ मटेरियल आ रहा है एंड दे आर सेंडिंग इट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रे, अ काइंड ऑफ ट्रे, दे आर सेंडिंग इट टू यू, है ना, एंड दे आर सेंडिंग द मटेरियल, बॉटल्स, वॉट एवर इट मे बी, है ना, इसके अंदर डाल के आपको भेज रहे हैं. नाउ you need to, when it comes to you, you need to remove this material and send these boxes back to the customer. So now this is the your, so not back to the supplier, external provider. So this is basically their property which is in your premises. You need to exercise care on that. You cannot damage that one, you cannot spoil that one, you cannot contaminate that one. The organization shall identify, verify, protect, and safeguard customers or external providers' property provided for the use or incorporation into the products and services. Not necessarily it is going to use into your products, it can be for use, है ना. लाइक मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, हो सकता है आपके पास नहीं हो, उन्होंने आपको दिया हो, या कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट आपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर से लाया हो, तो इट इज फॉर योर यूज. तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है एंड उसको सेफगार्ड करना है. प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड इज वन थिंग, प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड, ठीक है, फ्रॉम एनी डैमेजेस, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड. When the property of a customer or external provider is lost, अगर इसमें से कुछ लॉस हो जाता है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स लॉस्ट होती है, डैमेज होती है, और अगर वो अनसूटेबल होती है फॉर द यूज, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिपोर्ट दिस टू द कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर एंड रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैज ऑकर्ड. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बॉक्स आया उनका और ये डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ द फोकलिफ्ट और बिकॉज ऑफ द हैंडलिंग, बिकॉज ऑफ द रेन, है ना, तो आपको ये किसको बताना है, यू नीड टू रिपोर्ट इट टू द कस्टमर. अगर आपके एक्सटर्नल प्रोवाइडर का था तो यू नीड टू रिपोर्ट इट टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर. अगर उनका स्पेसिफिकेशन शीट था या फिर उनका ड्राइंग था, इट गॉट डैमेज्ड, तो आपको उनको बताना है और आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है, व्हाट हैज ऑकर्ड, क्या हुआ था, है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डैमेज एंड व्हाट कम्युनिकेट टू द कस्टमर, उनके पास से क्या आया था, रिप्लाई वगैरह, या क्या उन्होंने बोला था, रिजोल्यूशन क्या हुआ उसका, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेल ऑल्सो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेमो ऑल्सो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में रहे हो, सॉफ्ट हार्ड में रहे, आपके पास रहना चाहिए. So, Mr. Prashant, are you utilizing any customer's property? Is any customer property coming to you? No, sir. No. Any external provider's property? No, sir. Only sometimes Hydra and other things is Okay, required by us. हाँ, या so जो भी हैंडलिंग, वो तो सर्विस के लिए, आपके यूज के लिए, तब भी आपको एक्सरसाइज करनी है केयर, है ना. तो अल्टीमेटली पता है कि ये चीजें उसमें रहती है, जब आपका इवन जो हाइड्रा आती होंगी, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, ड्यूरिंग दी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी में रहता है कि नहीं इसके अंदर डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए. कभी कभी तो लोग फोटो निकाल के भी भेजते हैं, तो इवन जब उनका ही ड्राइवर रहता है तो यू आर नॉट, योर ऑब्लिगेशन वो थोड़ा सा निकल जाता है, बिकॉज देयर पर्सन इज कमिंग फॉर हैंडलिंग, तो आप बोलते हो कि नहीं, यू नीड टू हैंडल विद द केयर. इवन हम ही उनको बताना पड़ता है कि उनके कारण अगर हमारे प्रॉपर्टी डैमेज हुई ड्यूरिंग द हैंडलिंग, सो
उनके ऊपर उनको कंपनसेट करना पड़ेगा. Okay, so this is related to the property belonging to the customer or external provider. Yes, by the way of work permit, we provide them the instruction and other service requirement. हाँ, We define that kind of thing. हाँ, that thing covers under that clause, है ना, जो हमने इसमें किया ना, information to external provider. ये जो है ना, जब आप उनको देते हो ये वगैरह, तो आप उनको कम्युनिकेट करते हो बेसिकली, क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस कंडीशन में चाहिए. प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो है, फिर वो आपके पास अगर वो आपके प्रीमाइसेस में आती है, डेफिनेटली आप उसको डैमेज नहीं कर सकते हो, है ना. नंबर 2, जैसे कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस आते हैं, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी ट्रीटेड एज अ कस्टमर प्रॉपर्टी. अगर आपके पास वो एज अ स्पेसिफिकेशंस अगर आते हैं, तो इफ दे आर जस्ट रेफरिंग टू सर्टन स्टैंडर्ड्स और समथिंग, देन ओके, है ना, वो इट इज नॉट द कस्टमर्स प्रॉपर्टी. बट अगर कस्टमर स्पेसिफिकेशन भेजता है आपको, दैट इज अ कस्टमर प्रॉपर्टी, है ना. आपको उसको प्रॉपर फाइल करके रखना है, उसके कंट्रोल करके रखना है, रिवीजन स्टेटस वगैरह प्रॉपर रखना है. इवन वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में भी हमने उसको देखा हुआ है. नाउ आपने प्रोडक्शन कर दिया है ना, इन कंट्रोल मैनर में कर दिया है आपने. अब आपको उसको प्रिजर्व करना है ना, सेफगार्ड करना है आपके प्रोडक्ट को, है ना. अभी तक आप सेफगार्ड कर रहे थे कस्टमर की प्रॉपर्टी या एक्सटर्नल प्रोवाइडर की प्रॉपर्टी. अब हमको सेफगार्ड करना है हमारे प्रोडक्ट को, है ना. इट कैन बी अ फाइनल प्रोडक्ट, इट कैन बी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. सो द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? The requirement is the organization shall preserve the outputs during production and service provision. तो जो भी हम प्रोडक्शन सर्विस की एक्टिविटी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी हम कैरी आउट कर रहे हैं, तो जो भी आउटपुट है उसको हमको प्रिजर्व करना है टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू एंश्योर कंफर्मिटी टू द रिक्वायरमेंट. तो अगर मुझे लगता है कि इफ आई स्टोर दिस पार्ट इन ओपन, if this part get contaminated with the water, अगर उसके कारण conformity to the product अगर हमारी मीट नहीं होती है ना, और conformity to the product जो है हमारी अफेक्ट होती है, इसका मतलब we have not preserved the product properly. बहुत बार हमको जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है कि स्टोर इन अ cool and dry place, do not keep it under direct sunlight, है ना. these are basically a preservation, हमारी प्रिजर्वेशन की ये है ना, रिक्वायरमेंट्स है. तो सिमिलर वे आपके प्रीमाइसेस में जब है, तब भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. यू नीड टू अवॉइड इट फ्रॉम एनी ऑफ द डैमेज. नोट में क्या दिया है? प्रिजर्वेशन कैन इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, है ना, हैंडलिंग, कंटेमिनेशन कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज कहां पे करोगे, किस तरह से पैक करोगे, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन, ये सब चीजें आती है प्रिजर्वेशन में. हैंडलिंग रिलेटेड अगर कोई चीजें है, हैंडलिंग को भी आपको प्रॉपर करना है ताकि वो डैमेज ना हो, ताकि वो हमारे कंफर्मिटी जो रिक्वायरमेंट्स की है वो मीट करे. अब आपको क्या करना चाहिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमको इस क्लॉज को प्रॉपरली मीट करना है और प्रोडक्ट को भी डैमेज होने से बचाना है, तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि हाउ द प्रोडक्ट कैन गेट डैमेज, है ना. हाउ द प्रोडक्ट कैन गेट डैमेज और हाउ द प्रोडक्ट कैन गेट स्पॉइल्ड, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ हैंडलिंग, फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना, what kind of contamination can happen, ठीक है, वो हमको एक बार रिव्यू करना चाहिए. एंड देन वी नीड टू पुट कंट्रोल ऑन ईच एंड एवरी वन. वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है तो ओके, हम प्रोडक्ट को जो है पैलेट के ऊपर रखेंगे ताकि नीचे से पानी आए तो भी वो कंटेमिनेट ना हो, एंड उसको कवर्ड शेड में रखेंगे. वी विल नॉट पुट इट एनीवेयर, आई विल पुट इट अंडर कवर. डायरेक्ट सनलाइट से रोकना है तो ओके, कवर्ड शेड में रखेंगे उसको प्रॉपरली, है ना. डैमेज ना होने के लिए उसको डिमार्केटेड एरिया में रखेंगे.
पैकिंग उसका प्रॉपर करेंगे ताकि एक्सटर्नल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको इम्पैक्ट ना करे। कंटेमिनेशन के लिए हम उसको डस्ट वगैरह से कंटेमिनेट नहीं होने देंगे, वाटर से कंटेमिनेट नहीं होने देंगे। सो ऑल दीज आर द प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज दैट यू कैन टेक। क्लियर है इसमें प्रिजर्वेशन में किसी को कोई इश्यू? ओके, post delivery activities, and then there is a control of changes. Post delivery activities, the organization shall meet requirement for post delivery activities associated with the products and services. So what kind of post delivery activity can be included? So post delivery activities can include actions under warranty provision. अगर कोई एक्शन, अगर आपका जो वारंटी आपके प्रोडक्ट के ऊपर आप अगर देते हो, है ना, तो उसके अंडर अगर कोई एक्शंस आपको लेना पड़ता है, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग 1 year वारंटी, इट मींस यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस और एक्टिविटी आफ्टर द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग डिलीवर्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हम कभी सर्विसिंग करते हैं ना, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट हम सर्विस करते हैं, सर्विसिंग की बात करें, तो आप बोलते हो कि यस अगले 3 महीने तक अगर इसमें कुछ हो जाता है वी विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सो यू नीड टू चेक व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू यू। उसके अंदर क्या आता है? वारंटी प्रोविजन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस सच एज मेंटेनेंस सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज सच एज रिसाइकलिंग और फाइनल डिस्पोजल। अब जैसे हमने जो कार वगैरह बनाते हैं, 2 व्हीलर्स बनाते हैं ना, दे आर बेसिकली कैरिंग आउट सर्टन पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना, दे आर गिविंग यू फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज एज वेल एज दे आर प्रोवाइडिंग यू द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स, है ना, तो वो प्रोवाइड करे। दीज आर नथिंग बट अ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज विच दे आर कैरिंग आउट थ्रू देयर चैनल पार्टनर्स। सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर वारंटी क्लेम्स रहते हैं, है ना, आजकल जो थर्मोमीटर्स आ गए हैं या कोई चीजें होती है जिसके अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है विद इन दिस मच पीरियड ऑफ टाइम, दे आर रिप्लेसिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको वो बोलते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वी विल प्रोवाइड यू आवर पीपल, है ना, फॉर सर्विसिंग फ्री ऑफ चार्ज, और हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे फ्री ऑफ चार्ज। कार मैन्युफैक्चरर आपको रोड साइड असिस्टेंस दे रहे हैं फॉर द 5 years। अगर कार में कुछ खराबी आती है ऑन द रोड, दे विल पिक इट अप, सेंड इट टू द ऑथराइज्ड डीलर नेटवर्क विदाउट एनी चार्ज। डेफिनेटली उसके बाद जो उसको लगेगा मटेरियल वगैरह वो खर्चे रहेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज बेसिकली अ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी दे आर कैरिंग आउट। सिमिलरली अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके ऊपर अगर कोई पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज एसोसिएटेड है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी है। Determining the extent of post delivery activities, determining the extent of post delivery activities that are required, है ना। when we determine कि कहाँ तक की पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज हमको कंसीडर कर हमको देनी है, डिटरमाइन करनी है, तो हमको क्या क्या कंसीडर करना है? लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना। व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर देयर? स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर। द पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस एसोसिएटेड विद हिज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिए, तो व्हाट आर द पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट कैन गो रॉन्ग विथ आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो उसके बेस पे हमको डिटरमाइन करने की यस अगर ऐसा होता है तो हमको पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कार वालों ने डिटरमाइन किया कि यस
समथिंग कैन गो रॉन्ग इन द इंजन, है ना, तो हो सकता है कि हमको उसको टो करना पड़ेगा और कस्टमर विल गेट डिससेटिस्फाइड। अगर आप पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी उसको प्रोवाइड करते हो तो वो डिससेटिस्फैक्शन का लेवल कम हो जाएगा। अगेन, कार बंद होती है तो यू विल गेट डिससेटिस्फाइड, बट अगर उसके बाद आपको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस मिलती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फॉर एग्जांपल, है ना, तो आप क्या करोगे, यू विल बी डिससेटिस्फाइड टू अ लोअर लेवल। सो वो क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उसके अनडिजायरेबल जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके प्रोडक्ट के साथ उन्होंने डिटरमाइन किया। तो सिमिलरली यू ऑल्सो नीड टू डू द नेचर, यूज एंड इंटेंडेड लाइफ टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना। तो आपके मटेरियल का नेचर, जो आप या सर्विस का नेचर, उसका यूज और इंटेंडेड लाइफ टाइम, कब तक का उसका लाइफ टाइम है उस प्रोडक्ट का, वो सब हमको डिटरमाइन करना है व्हाइल प्रोवाइडिंग द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, है ना। लाइक अगर हमने जो लोग आरओ वाटर की ये बनाते हैं, तो आफ्टर दैट दे आर प्रोवाइडिंग द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज लाइक सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके ऑथराइज्ड डीलर्स रहते हैं, ऑथराइज्ड मेंटेनेंस पर्सनल्स रहते हैं। इंस्टॉलेशन इज वन ऑफ द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, है ना, वो इंस्टॉलेशन इज वन ऑफ द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। आपने डिलीवर तो कर दिया, बट उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, वेदर इट्स अ टीवी, वेदर इट्स अ रेफ्रिजरेटर, वेदर इट्स एयर कंडीशनर। सो ऑल दीज नीड्स पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस एक्टिविटी है। ओके, कभी कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है विच रिक्वायर द फाइनल डिस्पोजल और रिसाइकलिंग ऑल्सो, तो जो सप्लायर होता है वो आपको बताता है कि यस, आफ्टर योर यूज प्लीज सेंड इट टू अस, वी विल रिसाइकल इट, तो हम उसको रिसाइकलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल दीज आर नथिंग बट अ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। उसके अंदर आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी कंसिडर करनी है और कस्टमर के फीडबैक के बेस पे भी आपको डिटरमाइन करना है कि कहां तक आपको पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। क्लियर? सो आपके प्रोडक्ट में कोई पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी है इन्वॉल्व? मिस्टर प्रशांत, आई थिंक नॉट इन्वॉल्व ना, आपकी इसमें है कोई ऐसी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी? No, sir. नहीं We ना, don't have any. यस यस, आपकी इसमें नहीं होगा वो। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट बेसिकली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्लॉज। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, है ना, द लास्ट क्लॉज ऑफ दिस 8.5 क्लॉज, दैट इज सर्विस प्रोविजन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग प्रोविजन, उसके अंदर जो है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोविजन, उसके अंदर है कंट्रोल ऑफ चेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि जो भी चेंजेस करते हो आप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इट विल कंटिन्यू टू कंफर्म विद द रिक्वायरमेंट, क्योंकि चेंजेस आर इनिवेटेबल, होते हैं चेंजेस, बिकॉज डायनेमिक सिचुएशन है प्रोडक्शन, और इसमें कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिव्यू एंड कंट्रोल changes for production and service provision to the extent necessary to ensure continuing conformity with the requirement। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, आपको जो भी चेंजेस हो जाते हैं, अगर जैसे मैंने बताया कि साइकिल टाइम कुछ चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो आपको उसको रिव्यू करना है और उसको कंट्रोल करने हैं चेंजेस को, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है इट विल कंटिन्यू टू कंफर्म विद द रिक्वायरमेंट। अल्टीमेट एम है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसने जो रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की, नॉट ओनली डिफाइंड रिक्वायरमेंट बट जो उसकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स है वो भी मीट करने चाहिए। बट ये इंश्योर करना है आपको, अगर कुछ चेंज होता है तो आपको उसको रिव्यू करना है, उसको वैलिडेट करना है कि यस, ये चेंज के कारण हमारे प्रोडक्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है। You need to retain the documented information describing the results of the review of changes। ये जो चेंजेस हुए हैं
उसको आपको रिव्यू करना है. The persons authorized for the change and any necessary actions arising from the review. जो हमने चेंजेस किए, जो चेंजेस में हमने आपने ये भी दिखा था कि क्यूएमएस रिलेटेड कोई चेंजेस है ना. अब ये हो गया हमारे प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन रिलेटेड चेंजेस. फॉर एग्जांपल आपने कोई एसओपी चेंज किया है ना, तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि इसको रिव्यू किया गया था, देन ओनली वी हैव चेंज, व्हाट हैज बीन चेंज, हु हैज रिव्यूड इट, किसने उसको ऑथराइज किया, और उसके ऊपर कोई एक्शंस अराइज हुई. लाइक अगर हमने एसओपी चेंज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ट्रेन द पीपल. दैट इज वन ऑफ द एक्शन केम आउट ऑफ दिस चेंज. अगर हमने कोई एसओपी चेंज किया, वर्क इंस्ट्रक्शन चेंज किया, तो यू नीड टू ट्रेन द रिलेटेड पीपल. उन लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि यस दिस चेंज हैज बीन मेड, है ना. ये आपको अभी जो नया काम है आपको इसके हिसाब से करना पड़ेगा. सो दैट इज द एक्शन. तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जो भी अगर आपके चेंजेस होते होंगे प्रोडक्शन में वगैरह. तो है ना, अल्टीमेट एम क्या है, प्रोडक्ट ने रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है. इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चेंजेस होते रहे वहां पर. चेंजेस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, है ना. वो चेंजेस नीड्स टू बी रिव्यूड, क्या क्या चेंज हुए हैं और किस तरह के हुए हैं. ठीक है. सो विद दिस क्लॉज नंबर 8.5 इज ओवर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू पीपल कैन आस्क. else we will close the today's session. And any question, Mr. Sarvana, Mr. Prashant, other people, any question? No, sir. No. Understood. Okay, है ना. So this was a very important. Yeah. No, sir. Thank you. Thank you very much. Okay. So now tomorrow what we will do, because we have covered 8.5. So tomorrow we will go to release of products and services, है ना. अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसके चेंजेस वगैरह जो थे सब कंट्रोल कर लिए, आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी कर लिया, सब कुछ हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया. नाउ रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है दैट इज कम्स इन 8.6. एंड देन 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट, दैट वी विल सी. एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल स्टार्ट विद द क्लॉज नंबर 9 ऑल्सो. सो माई टारगेट इज बाय वेडनेसडे, है ना, टुमारो इज ट्यूसडे, एंड बाय वेडनेसडे वी शुड कवर ऑल द 10 clauses. And then from Thursday we will start diving into the requirements of auditing, how to conduct the audit. That is a practical approach we will see. And first thing is that knowing the requirements, ki yes, this is what is required by the standard, this is required by particular sections to be done, है ना. एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमको क्या क्या करना है हमने समझ लिया. एंड देन वी नीड टू ऑडिट इट टू चेक whether we are doing as per required or not within the framework of the quality management system. Okay, so bye bye, good night, see you people tomorrow same time. Good night, sir. Yeah, good night.